हाय एवरीवन, TND लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू यूनिट 1 वीडियो 2 ऑन द टॉपिक ऑफ SAP मेथोडोलॉजी इन SAP SD। So what is SAP methodology? What is the full form of SAP methodology? So full form is Accelerated SAP. Okay, so why the methodology is required? So see, हम लोग एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग SAP। सो क्या आपको ऐसा लगता है कि यह विदाउट किसी प्लानिंग के सक्सेस किया जा सकता है? सो आंसर इज ऑफ कोर्स नो। सो देन फॉर दैट वी नीड अ प्लानिंग, करेक्ट, अ रोड मैप कि हाउ, फॉर एग्जाम्पल इफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ में हम लोगों को SAP इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट को देना है, देन उसके लिए कुछ रोड मैप होना चाहिए। सो SAP हैज गिवन द प्रूवन मेथोडोलॉजी, okay, which has been used since long time and it is very successful. That is the proven methodology to implement it efficiently. That is SAP methodology. Okay, so should be divided in some phases into some parts to make it more successful. है तो फर्स्ट फेज है हमारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का। क्या होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसको हम थोड़ा डिटेल में आगे इस वीडियो में देखेंगे। सेकेंड फेज इज बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज, थर्ड इज द रियलाइजेशन फेज, फोर्थ इज द फाइनल प्रिपरेशन फेज, and fifth is the go live and support phase. That is the final phase of this methodology. Now before going deep into each phases, let us understand the terminology which we will use in this video, okay, related to the parties. Okay, so see, what is SAP? In earlier video we have discussed SAP is an ERP, and ERP is what? ERP is an software. So this is a software company which sells, SAP is a software company which sells SAP ERP system. So this SAP ERP system has been purchased by an organization, for example. Okay, so that organization we call during the time of implementation as client. So this organization purchased SAP software. Now, if organization had purchased SAP software with intention to implement in their company, so of course they will look for some implementation partner. So here, apart from these two parties, third party comes into picture, which is software consultation provider, a company who provides the service of the software consultations. Here we are coming into picture as well. So globally, IBM, HCL Tech, Accenture and many more IT companies are there who are giving the software consultation services for SAP. So we were talking this organization will hire this implementation partner. So implementation partner does what? They help to implement SAP in their organization. During the implementation time, we call the organization as client and our company as implementation partner. Okay. Now let us discuss the 5 phases of methodology. So first phase is the project preparations. Project preparation phase starts with the hardware setup. See, अब SAP हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में SAP इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हार्डवेयर की। इफ इट इज इन प्रीमाइस, ओके, इट्स नॉट क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन, इट्स इन प्रीमाइस इम्प्लीमेंटेशन, तो हार्डवेयर का सेटअप लगता है, विच इज डन इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज। सेकेंड थिंग, इसी फेज में सबसे पहली मीटिंग होती है विच इज बिटवीन द क्लाइंट टीम एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टीम। क्लाइंट टीम से मैनेजमेंट की टीम में जो IT के हेड हैं CIO, जो फिनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं CFO,
जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के हैं वो CSCO एंड एज पर रिक्वायरमेंट क्लाइंट साइड से जनरल मैनेजर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट्स फॉर इस काइंड ऑफ प्रोसेस, उनके जो जैसा भी स्ट्रक्चर है, जैसी भी हायरार्की है, उधर से मैनेजमेंट टीम क्लाइंट से हो गई। सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर साइड से डिलीवरी हेड होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, मॉड्यूल लीड्स होते हैं। और मॉड्यूल लीड्स में जैसे SD मॉड्यूल है SAP का तो उसके लीड, बेसिस मॉड्यूल है तो बेसिस मॉड्यूल लीड्स, ऐसे ऐसे सारे मॉड्यूल्स के लीड्स रहते हैं जिनका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। देन नॉर्मली इस मीटिंग में एसोसिएट कंसल्टेंट या फिर डायरेक्ट कंसल्टेंट कम ही इन्वॉल्व होते हैं। एक बार ये मीटिंग हो गई, सारी प्लानिंग सेट हो गई, इस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज में वी प्लान आवर प्रोजेक्ट एंड वी ले द फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। लाइक in this meeting both parties lay the foundation for successful implementation and project team introduction from the both parties जो मैंने आपको बताया, capable network and hardware setup। और इसी मीटिंग में दोनों साइड से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, टारगेट डेट्स क्या हैं, हर एक माइलस्टोन को अचीव करने का डिस्कस होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो हेल्प करता है स्मूथ एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। वंस इट इज डन, द सेकेंड फेज स्टार्ट्स विच इज बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें क्लाइंट का सारा बिजनेस का प्रोसेस एज मच एज पॉसिबल हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। ओके, सो अगर BBP एक डॉक्यूमेंट है तो डेफिनेटली उसका एक स्ट्रक्चर रहता होगा कि उसमें क्या क्या हम लोगों को इन BBP एज कंसल्टेंट लिखना है। इस BBP डॉक्यूमेंट्स के 3 मेन सेगमेंट हैं, विच इज एज इज, टू बी एंड गैर। व्हाट इज एज इज? सी, कंपनी इज ऑलरेडी रनिंग तो उनका एक प्रोसेस होगा, वो डेफिनेटली तो लीगेसी सिस्टम होगा। उस लीगेसी सिस्टम में SD मॉड्यूल का जैसे ऑर्डर से लेकर के कैश तक, कस्टमर ऑर्डर देता है, उसका डिलीवरी होती है, बिलिंग होता है, फिर वो पैसा पेमेंट करता है, ये पूरा प्रोसेस O2C का अभी कैसा उनके सिस्टम में रन हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स वो कैप्चर करते हैं, वो एज इस सेगमेंट में लिखते हैं। और 2B में लाइक वो कुछ अपडेट चाहते हैं, ठीक है, अभी करेंट प्रोसेस से थोड़ा अलग होकर के कुछ और चाहते हैं या सेम टू सेम वैसा ही चाहते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ 2B डॉक, फ्यूचर प्रोसेस। सो एज इज करेंट प्रोसेस, 2B इज फ्यूचर प्रोसेस। ठीक है, उनके 2B को SAP में डालना है तो अब फीजिबिलिटी हम लोगों को देखनी रहती है। एज कंसल्टेंट हमको पता होना चाहिए कि हम SAP में कितना, SAP का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें हम कितना फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस के सारे फीचर्स SAP स्टैंडर्ड में हैं। सो हियर अभी ये पेंट का फीचर है, ठीक है, कि इसमें ये इतने ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई और पेंट का टूल यूज होता है, उसमें क्या है, उस टूल्स में अगर शेप्स डालना हो तो शेप्स के लिए उनके पास इतने ही ऑप्शन हैं, ये 3। ओके, पेंट करने के लिए MS पेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अभी उनको इतने सारे फीचर्स चाहिए इन शेप्स। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो पेंट में है, पेंट में आपको इतने ही फीचर्स मिल रहे हैं। अब उनको एडिशनल फीचर एक ये भी चाहिए, ये स्टैंडर्ड में है नहीं, तो हम लोगों को ये बनाना पड़ेगा विच इज नॉट इन स्टैंडर्ड पेंट। सो दिस इज कॉल्ड गैप। इसको किसी वर्क अराउंड के थ्रू फुलफिल करते हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो है नहीं, SAP नहीं प्रोवाइड करता। SAP is open to do the work around. SAP is open to do the RISEF. RISEF क्या होता है, वर्क अराउंड क्या है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो समराइज करते हैं व्हाट इज एज इज टू बी। एज इज जो करेंट लीगेसी सिस्टम है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रोसेस उनके चल रहे हैं, उन फीचर्स में से कौन कौन से प्रोसेस वो यूज करते हैं। और टू बी मतलब फ्यूचर में वो कैसा प्रोसेस चाहते हैं, ओके, क्या क्या फीचर्स चाहते हैं, वो हो गया। अब एज इज और टू बी, ये तो वही बात हो गई कि आपको अभी कुछ एक्स चला रहे हैं, अब आपको वाई चाहिए और उसके लिए आपने एक ईआरपी सिस्टम खरीद लिया है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि ईआरपी सिस्टम में आपकी सारी डिजायर पूरी हो जाए, सारी चीजें स्टैंडर्ड में दी हुई है, वो तो उस जो चीजें स्टैंडर्ड में नहीं, दैट इज गैप। अब उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टीम है वो वर्क अराउंड करती है या राइसेफ के थ्रू करवाती है, या अगर किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है तो उसको डिटेल में बता करके उसको डिस्कस करके बिजनेस से वो बिजनेस कभी कभी ड्रॉप ऑफ भी कर लेता है अगर उनका बहुत क्रिटिकल इशू नहीं है, बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो दिस इज एज इज, टू बी एंड गैप। सो इसी ब्लूप्रिंट का एक स्ट्रक्चर की बात हमने की जिसमें आप एजेस लिखते हैं एक प्रोसेस का, उस प्रोसेस का टू बी लिखते हैं, उसका गैप क्या है वो लिखते हैं। नाउ टू राइट एज इज बीवीपी डॉक्यूमेंट वी हैव टू डिस्कस द प्रोसेस विद द क्लाइंट। हमको कैसे पता होगा कैसा प्रोसेस चलता है, हमको क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ता है, उनका एक टीम होता है, वो जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं वो प्रोसेस जो टीम रन करती है वो आपको पूरा अपना स्क्रीन दिखाती है लीगेसी सिस्टम का और बताती है कि प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसको एज कंसल्टेंट हमें समझना पड़ता है। सेकेंड, जब हम बिजनेस टीम के साथ बैठ करके उनका प्रोसेस डिस्कस करते हैं, उनका स्क्रीन देखते हैं लीगेसी सिस्टम का, तो हम हर बार हर मीटिंग के बाद इट इज सजेस्टेड कि आप हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं, वी मेक एमओएम। एमओएम मीन्स मिनट्स ऑफ मीटिंग। जितनी बातें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं एमओएम में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि बाय एंड ऑफ द डे हम अगर बीबीपी में जाकर के कुछ अपडेट करना चाहें या फिर बीबीपी के लिए तो हमारे पास एक रॉ इंफॉर्मेशन पूरा रहे। रॉ इंफॉर्मेशन हमको मोर एक्यूरेसी के साथ, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ बीबीपी बनाने में हेल्प करता है। ओके, अब बीबीपी डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, फेज 2 इज कंप्लीटेड, देन फेज 3 कम्स इनटू पिक्चर। अभी हमने सारा प्रोसेस बिजनेस का समझ लिया, उनका लीगेसी सिस्टम देख लिया, उसके हिसाब से बीबीपी डॉक्यूमेंट बना लिया। बीबीपी डॉक्यूमेंट बना करके रिलीज करते हैं बीबीपी को, और वो बीबीपी रिलीज करते हैं इसी फेज में। और इस फेज में जब बीबीपी रिलीज करते हैं तो बिजनेस टीम से भी, क्लाइंट टीम से भी प्रोसेस ओनर उसको पढ़ते हैं बीबीपी को और समझते हैं कि एवरीथिंग इज एज पर देयर एक्सपेक्टेशन और नॉट। अब सारा उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है तो उसको साइन ऑफ कर देते हैं बीबीपी को, या फिर वो कुछ करेक्शन के लिए, कुछ अपडेट के लिए वापस से हमारे पास भेजते हैं तो हम उसका वर्जन 2 उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करके फिर से देते हैं। सो बीबीपी एक बार साइन ऑफ हो गया तो हमको पूरा एक रोड मैप मिल जाता है कि कैसे कैसे हमें एसएपी में प्रोसेसेस बनाने हैं, क्या क्या चीजें हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या राइसेट करना है। तो उसके लिए अब हमको पूरा प्रोसेस मैप पता लग गया, प्रोसेस कैसे बनाना है, तो हम फेज 3 में आते हैं विच इज रियलाइजेशन फेज। रियलाइजेशन फेज में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कस्टमाइजेशंस करते हैं एज एसएपी कंसल्टेंट। एसएपी में हम काम करना शुरू करते हैं। तो एसएपी फंक्शनल टीम स्टार्ट्स द कॉन्फ़िगरेशन इन डेवलपमेंट सर्वर। जैसा कि हमें पता है कि डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर्स में हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। डेवलपमेंट सर्वर के एक और क्लाइंट में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे अगले कुछ वीडियो में। और फिर उसको रिलीज करके क्वालिटी में टेस्टिंग के लिए देते हैं, बाद में प्रोडक्शन में वो लाइफ पे चलता है। ठीक है, रियलाइजेशन फेज कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशंस, सेकेंड इज द फाइन ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। इन बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन का एक स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर देते हैं, उसी के बेसिस पे बाद में बाय शोइंग टू द क्लाइंट उस पर फाइन ट्यूनिंग भी जरूरत है तो फाइन ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। या फिर
फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन में एक प्लांट कॉन्फ़िगर हुआ, ओके। अब वैसे ही मल्टीपल और प्लांट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल और प्लांट्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट प्लांट, रिमेनिंग प्लांट जो उसी टाइप के हैं सेम कॉन्फ़िगरेशंस किया जा सकता है। इसलिए फर्स्ट प्लांट का जो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उसी टाइप के जो प्लांट्स और हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दैट इज फाइन ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। फोर्थ फेज हमारा आता है जो फाइनल प्रिपरेशन का। जो ये फोर्थ फेज है ना, इट इज वेरी मच लिंक्ड विद द थर्ड फेज। व्हेन वी स्टार्ट द फेज 4, यहाँ फेज 3 और फेज 4 मर्ज होता है, ठीक है। मर्ज होने के टाइम पे चूंकि यूटी क्या है यहाँ पे, तो हम लोग यूटी करते हैं। इस फाइनल प्रिपरेशन में यूटी करना होता है। यूटी मतलब होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब हर मॉड्यूल वाले अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस में टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका कॉन्फ़िगरेशन ठीक चल रहा है कि नहीं चलता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, दो मॉड्यूल्स जहां जहां लिंक हो रहा है, ठीक है। देखो एसटी का प्रोसेस इज लिंक विथ एमएम। कैसे लिंक है आगे हम समझेंगे इसको। एसटी का प्रोसेस इज लिंक विथ एफआई। तो जब अलग अलग एसटी और एमएम और एफआई तीनों ने अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, तो नाउ लिंकेज हैज टू बी सेटअप। लिंकेज का भी टेस्ट होना, तो लिंकेज अपने आप सेटअप हो जाता है। अब उस लिंकेज को टेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर यूटी टेस्टिंग का मतलब हो गया कि एसटी मॉड्यूल में हम लोग काम कर रहे हैं तो अपने एसटी मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हैं, एसटी मॉड्यूल का ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सेकेंड जो होता है यूटी अगर कंप्लीट हो गया तो आईटी करते हैं। आईटी मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। इसमें जैसे मान लीजिए आप कस्टमर आता है, ठीक है, कस्टमर का बिलिंग तक हो गया, ऑर्डर दिया, डिलीवरी हुई और बिलिंग हो गई। बिलिंग होने के बाद इनवॉइस आ गया, लेकिन इनवॉइस होने के बाद वो जो पेमेंट करता है तो पैसा कहाँ आता है, एफआई टीम को आता है। तो एफआई में उसको कॉन्फ़िगरेशन रहता है पैसा आने का। नाउ वो इनवॉइस का पेमेंट आया है कि नहीं आया वो लिंक होता है। कभी भी आप सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि इस इनवॉइस का पेमेंट आया है कि नहीं। वो लिंक टेस्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमको एसटी और एफआई को साथ बैठ करके टेस्ट करना पड़ता है कि जब पेमेंट आ रहा है तो इनवॉइस क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ऐसे कर इस तरीके का। या जब बिलिंग हो गई तो बिलिंग के बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ये दोनों टेस्टिंग एक साथ कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल हो गई, तो हम लोग यूएटी करते हैं। यूएटी का मतलब हो गया यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें यूजर को एक्सेप्ट करना होता है, यूजर टेस्ट करता है अपने साइड से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूटी और आईटी करने के बाद यूएटी के लिए क्लाइंट को, यहाँ तो यूटी हमने खुद कर लिया, आईटी हमने खुद कर लिया, इसमें उनकी टीम बैठी हमारे साथ, वो चीज अलग है। लेकिन फाइनल जो एक्सेप्ट करता है यूजर, बिजनेस एक्सेप्ट करता कि हाँ हमें वो प्रोसेस मिल गया जो हमें प्रोसेस चाहिए था, उसके लिए यूएटी रिलीज करते हैं हम लोग। यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए सिस्टम देते हैं उनको, ठीक है। अभी क्या है, ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको क्यूएस सिस्टम में ही करते हैं, ओके। क्यूएस मतलब क्वालिटी सिस्टम में, ठीक है। डेवलपमेंट में नहीं करते। डेवलपमेंट में हम लोग यूटी कर सकते हैं, डेवलपमेंट में हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बाद में क्यूएस में भी आकर के हम लोग यूटी और आईटी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी लेकिन उस टीआर को एक बार यूटी और इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपमेंट सर्वर में करने के बाद पूरा कॉन्फ़िगरेशंस जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको क्वालिटी सर्वर में मूव करते हैं। कहाँ से, यहाँ पे जहाँ पर हमने जिस सर्वर पे हमने टेस्टिंग की है वो हमारा डेवलपमेंट सर्वर होता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की जो टीम होती है वो डेवलपमेंट में टेस्टिंग करती है, और टेस्टिंग करने के बाद सारा कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन वो सेटअप जो किया है एसएपी का वो क्वालिटी में मूव कर देते हैं। और बाद में क्वालिटी टीम जो बिजनेस की टीम होती है उसके वो क्वालिटी में यूजर आईडी और पासवर्ड उनके होते हैं, उसमें लॉगिन करके यूएटी रन करते हैं, वो प्रोसेस रन करते हैं। सारे प्रोसेस उनके हिसाब से अगर चला तो यूएटी साइन ऑफ देते हैं। अदरवाइज कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों को दिए तो हम लोगों को फिर से डेवलपमेंट में वो ऑब्जर्वेशन का करेक्शन करना पड़ता है, और करेक्शन करके वापस से उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, मतलब भेजना पड़ता है कहाँ पे, यहाँ क्वालिटी सिस्टम में। उसके बाद फिर
बिजनेस टीम उसको टेस्ट करती है, बिजनेस टीम टेस्ट की, अभी उनका प्रोसेस ठीक हो गया, जैसा उनको चाहिए था वैसा मिल गया, तो वो यूएटी का साइन ऑफ देते हैं। साइन ऑफ मतलब साइन करके दे देते हैं कि हाँ भाई जैसा हमें चाहिए था वैसा आपने बना दिया, इट इज ओके टू गो अहेड इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन भी इसके आगे का सिस्टम है, सर्वर है। तो डेवलपमेंट में हमने टेस्ट किया, क्वालिटी में यूज बिजनेस ने टेस्ट किया, एवरीथिंग इज ओके, तो बाद में प्रोडक्शन में आता है। लेकिन हम लोग अभी इस फाइनल प्रिपरेशन फेज में प्रोडक्शन तक नहीं जाते हैं, बल्कि क्वालिटी तक इसको होल्ड करते हैं। सारा चीज ठीक होने के बाद फिर फाइनल फेज आता है। ठीक है, तो इसमें अभी क्वालिटी में हो जाने के बाद हम लोग यूजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, है ना। यूजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको दिखाते हैं कि कैसे प्रोसेस चल रहा है। यूजर मतलब अभी तो इम्प्लीमेंटेशन की टीम उनके साइड से थी, बिजनेस की साइड से इम्प्लीमेंटेशन की टीम थी। अब जो प्रोसेस इन यूजर यूज करते हैं उनको बुलाया जाता है, ओके, उनको बुलाया जाता है, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे प्रोसेस रन करना। फॉर एग्जांपल अगर एसडी है तो ऑर्डर कैसे क्रिएट करोगे आप, कस्टमर कैसे बनाओगे अगर कस्टमर बनाने वाली जो टीम है, और आप कैसे डिलीवरी बनाएंगे, कैसे पीजीआई करेंगे उसका, कैसे बिलिंग करेंगे, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं उनको। फिर वो ट्रेंड हो गए तो प्रोडक्शन में जब लाइव हो जाएगा सिस्टम, ओके, हम लोग पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, लाइव हो जाएगा, तब वो उनको रन करने के लिए भाई उनको चाहिए ना, उनको कैसे प्रोसेस रन करना है, क्या टी कोड है, क्या स्टेप्स हैं, वो जानने के लिए एसएपी ट्रेनिंग उनको देते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे भी कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे, उसको भी उनको करेक्ट करना पड़ता है, वो भी करेक्ट करके फिर जाकर के फाइन ट्यूनिंग करके हम लोग रेडी हो जाते हैं गो लाइव के लिए। ठीक है, गो लाइव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन, जो कस्टमाइजेशन किया है, अभी खाली सेटअप बनाया है, वो सेटअप मूव करने के लिए हम रेडी है प्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से बिजनेस टीम प्रोडक्शन का सिस्टम यूज करने जा रही है। उसके पहले भी तो कस्टमर्स के ऐसा तो है नहीं कि पुराने ऑर्डर्स सारे फुलफिल हो गए होंगे, सारे की डिलीवरी हो गई होगी, सारे की बिलिंग हो गई होगी। कुछ ऐसे ऑर्डर्स होंगे जिनकी डिलीवरी नहीं हुई रही होगी, ठीक है, कुछ ऐसी डिलीवरी होंगी जिनकी डिलीवरी तो बन गई है लेकिन उसकी बिलिंग नहीं हुई रहेगी, कुछ तो होंगी जिसकी बिलिंग हो गई है लेकिन अभी उसका पेमेंट ही नहीं आया है। ऐसे ओपन ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हम लोगों को ये भी फाइनल प्रिपरेशन में इसको रेडी करके रखते हैं। इससे रिलेटेड और सारी चीजें, जैसे 3 चीजें होती हैं मेनली। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज द मास्टर डेटा, ठीक है, उनके कस्टमर्स ऑलरेडी रहते हैं, उन कस्टमर्स के पूरे डिटेल हमको रेडी करके रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल में हम रेडी करके रखते हैं कैसे उनको प्रोडक्शन में चढ़ाना है। सेकेंड, उसका ट्रांजेक्शन, जो मैं ट्रांजेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा था, ओपन ट्रांजेक्शंस, ओपन ऑर्डर, ओपन डिलीवरी, ओपन बिलिंग रहता है, वो अपने पास पूरा हम लोगों को एक्सेल में एक रखना पड़ता है कि कैसे माइग्रेट करना है। अपलोड के टूल्स रहते हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन में कर सकते हैं, वो अपलोड टूल भी इसी पीछे वाले फाइनल प्रिपरेशन में ही डेवलप कराते हैं। ठीक है, कुछ तो स्टैंडर्ड एसएपी के टूल्स हैं जिनसे वो ये अपने जो आपका मास्टर डेटा है या ट्रांजेक्शन डेटा है, ठीक है, ये अपलोड किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए हमको अपलोड प्रोग्राम बनाना पड़ता है बेहतर से। उसके बाद सबसे जब ये कटओवर में मास्टर डेटा हो गया, हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, और कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो तो टीआर के थ्रू आपकी आएंगी ही। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, कस्टमाइजेशन, वो टीआर के थ्रू जो मैं यहाँ बता रहा था, डेवलपमेंट से क्वालिटी, क्वालिटी से प्रोडक्शन को, वो तो आएंगे ही। ओके, सो दीज 3 काइंड ऑफ डेटा जो है प्रोडक्शन में गो लाइव के टाइम पे जाता है। वर्कलोड टेस्टिंग में पीक वॉल्यूम में हमारा सिस्टम स्मूथ चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी टेस्टिंग होती है। डेली जो लोड आएगा उस पर हमारा सिस्टम खरा उतरेगा या नहीं, वो सब भी टेस्टिंग इसकी होती है। अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस, जो स्मूथनेस ऑफ सिस्टम है वो भी टेस्ट होता है। ये सब रेडी होने के बाद हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेडी है, हो जाता है। पूरा हमारा ट्रांजेक्शन डेटा रेडी रखा रहता है अपलोड करने के लिए, मास्टर डेटा पूरा रेडी है अपलोड करने के लिए। तो हम प्रोडक्शन में जब गो लाइव करते हैं, गो लाइव करने से पहले वो सारी चीजें अपलोड कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसा कि टारगेट में भी पीछे हमने भी बोला था, 1 जुलाई को अगर हमको गो लाइव करना है तो उस दिन से पहले ही सारा डेटा उसमें अपलोड करके और यूजर्स को बोल देते हैं हम लोग कि वी आर रेडी फॉर गो लाइव
और फर्स्ट ट्रांजेक्शन SAP में रन होता है ऑन दैट गो लाइव फर्स्ट डेट। तो ड्यूरिंग अभी SAP हमारा गो लाइव हो गया, तो मतलब इसका मतलब ये है, गो लाइव का मतलब कि यूजर्स सारे ट्रांजेक्शन्स अब SAP में करेंगे। लीगेसी सिस्टम को वो में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, SAP में करना शुरू किया, अभी वो न्यू है तो उनको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, जैसे हाउ टू डू का इशू हो सकता है, या फिर प्रोसेस का भी इशू हो सकता है, या स्मूथली कोई रिपोर्ट नहीं चल रही, ऐसे इशू होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ इश्यूज आते हैं। उसके लिए इस गो लाइव के साथ साथ हाइपर केयर का सपोर्ट भी क्लाइंट लेते हैं। नॉर्मली 3 months का हाइपर केयर ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, उसमें हम लोग उनका सिस्टम स्मूथ करते हैं, यूजर्स को ट्रेंड कर देते हैं प्रोसेस करने के लिए। देन इस गो लाइव एंड हाइपर केयर के बाद हमारा पूरा SAP का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली अगर हुआ तो इट इज सक्सेस नाउ। एक्चुअली गो लाइव के दिन भी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस हो जाता है, बट इट इज अप टू मार्क जब हम हाइपर केयर के सारे इश्यूज भी रिजॉल्व करके दे देते हैं। तो इन दीज 5 phases ASAP methodology works to implement the SAP. So I hope ASAP methodology आपको समझ में आई होगी। ये मेथोडोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। अगर इस वीडियो में आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस ASAP मेथोडोलॉजी को अच्छे से समझिए। ये मेथोडोलॉजी आपको बहुत हेल्प करेगी। इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और अगर ये मेथोडोलॉजी आपको पूरा पता है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो if it is helpful for you, and please share this video to all the persons who needs this, and don't forget to subscribe my channel. I will see you in next video. Thank you very much.